Hello learner, in this video we are supposed to see various type of share capital. कंपनी की जो भी शेयर कैपिटल मार्केट में इश्यू की होती है उसके पहले भी देर आर different kind of share capital that we are going to see in this video. It can be divided into the following categories. Number one, it is authorized capital, means the such capital it is authorized by the memorandum of association of a company, and maximum amount of share capital of a company as per section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013. It is also called a registered or nominal capital. During the whole lifespan of the company can issue the maximum amount of share, it is known as authorized capital. It is just so into the balance sheet and उसका हमें कुछ नहीं करना होता है, राइट उसको सिर्फ दिखाना होता है कि कंपनी के पास इतनी ऑथोराइज कैपिटल है. फ्रॉम द ऑथोराइज कैपिटल कंपनी को जैसे भी फंड की ज़रूरत होगी वैसे वैसे कंपनी कैन इश्यू द शेयर इनटू द मार्केट विच इज़ कॉल्ड इश्यूड कैपिटल. It means company issue from time to time for the subscription as per section 2 subsection 50 of the Companies Act 2013. In other words, it is refers to such portion of the authorized capital which is actually offered to the public for the subscription. हमने ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ पार्ट निकाल के पब्लिक को दिया कि भाई आप इतना इन्वेस्ट करो, जितनी भी ज़रूरत होगी उतना हम पब्लिक में इशू करेंगे, राइट पब्लिक को ऑफर करेंगे. Subscription including the share allotted to the vendor and the signatories to the company's memorandum. The remaining portion not yet offered to the public for the subscription is called unissued capital which can be issued later on. Unissued capital बोलेंगे जो भी हमने इशू नहीं किया, हमारे पास पड़ी हुई है, कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होगी तब कंपनी मार्केट में पब्लिक को ऑफर करेंगे. अभी जो भी कैपिटल हमने मार्केट में इश्यू की होगी उसमें से पब्लिक विल सब्सक्राइब इनटू द कैपिटल. इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कंपनी ने सारी की सारी अमाउंट हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. इट कैन बी ओवर सब्सक्राइब ऑल्सो, इट कैन बी अंडर सब्सक्राइब ऑल्सो. उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं. सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग and subscribed by the member of the company as per section 2 subsection 86 of the Companies Act 2013. In other words, it refers to such proportion of issued capital. Issued capital में से जितना भी सब्सक्रिप्शन में मिला है it is called subscribed capital, has actually subscribed by the public. The balance of issued capital not subscribed by the public is called unsubscribed capital. यानी कि मान लो मैंने 5000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए, उसमें से 4900 के लिए ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो 100 शेयर वो क्या हो गए, अनसब्सक्राइब कैपिटल बोला जाएगा. इन 4900 शेयर विल नॉन एज सब्सक्राइब कैपिटल. अभी सब्सक्रिप्शन जितना मिला है उसमें से कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि मान लो 10 रुपये का शेयर है, हम इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे पब्लिक के पास है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू आर सपोज टू पे 3 रुपीज़. एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको शेयर अलॉट हो तो आपको 2 रुपये पे करने हैं. देन फाइनल कॉल में आपको 3 रुपये पे करने हैं. एंड अगेन एट द फर्स्ट कॉल में आपको 3 रुपीज़ पे करने हैं. एंड अगेन इन द लास्ट कॉल यू आर सपोज टू पे 2 रुपीज़. सो बाय दिस वे कंपनी कैन कॉल्ड अप द मनी एज पर देयर वांट. कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स such part of the capital which has been called for the payment as per section 2 subsection 15 of the act. In other words, it refers to such portion of the subscribed capital. सब्सक्राइब जिसने भी सब्सक्राइब किया होगा उसके पास से हम कॉल मंगवा सकते हैं, राइट, विच इज़ विच द शेयर होल्डर आर कॉल्ड अपॉन टू पे. सो हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि भाई आपको इतना पेमेंट अभी करना है. Then paid up share capital means aggregate amount of money which is created and paid up as an equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued, and also include the amount created as paid up in respect of share of the company, but does not include any other amount received in respect of such share by whatever name called as per section 2 subsection 64 of the Companies Act 2013. इसको बोलते पेड अप कैपिटल, यानी कि शेयर होल्डर्स ने जितनी भी अमाउंट पे की है, हमने कॉल्ड की है कंपनी के यानी कि हमने पब्लिक के पास से कॉल किए थे और उसमें से कितने रुपीज़ आ गए उसको बोलते पेड अप कैपिटल.
it might be possible there are some shareholders who are not paying the last installment, who are not paying the first and last installment, who are not paying the allotment, first call and last call also. तो वो सारी चीज़ें पेड अप कैपिटल में नहीं आएगी. जितना भी मनी हमें मिलता है कॉल्ड अप कैपिटल में से उसको बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल. द सब्सक्राइब कैपिटल may be two type. Number one, subscribed and fully paid up capital. When the company calls the entire face value of the share is paid by all the shareholder and it is said to be subscribed and fully paid up share capital. कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए. कंपनी ने जितने भी फेस वैल्यू के रुपीज़ मंगवाए थे वो सारे के सारे रिसीव भी हो गए. इट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल. सब्सक्रिप्शन मिल गया, एप्लीकेशन का मनी मिल गया, लेकिन अलॉटमेंट या तो फर्स्ट कॉल या तो फाइनल कॉल किसी एक या तो दो या तीन शेयरहोल्डर्स का हमें नहीं मिला. दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, लेकिन नॉट फुली पेड अप कैपिटल. शेयर कैपिटल इज सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. नंबर वन, व्हेन द कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. कंपनी ने ही अभी तक फुल वैल्यू नहीं मंगवाई, फुल फेस वैल्यू नहीं मंगवाई है, राइट. 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी हैज़ कॉल्ड अप 5 रुपीज़, क्योंकि कंपनी को अभी ज़रूरत नहीं थी, नहीं है, तो कंपनी नहीं मंगवाएगी. बाकी के 5 रुपीज़ है वो कंपनी इन फ्यूचर कभी भी कॉल कर सकती है. व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप फुल वैल्यू ऑफ द शेयर बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स. हमने तो कंपनी ने तो सारे के सारे पैसे मंगवा दिए, राइट, बट वी आर नॉट रिसीविंग सम अमाउंट फ्रॉम द सम ऑफ द शेयर होल्डर विच इज़ कॉल्ड कॉल इन एरियर्स. हमें मंगवाए थे 5 रुपीज़, 5,000 शेयर होल्डर्स के पास 5,000 शेयर्स के ऊपर हमने मंगवाए थे 5 रुपीज़, लेकिन उसमें से 100 शेयर्स जिसके पास है, ऐसा एक बंदा है जो पे नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स होगा. उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल. According to section 65 of the Companies Act 2013, it is an unlimited company having a share capital may by a resolution for registration as a limited company under this act do either or both the following things. Number one, increase the nominal value of the share capital by increasing the nominal amount of each of its share, and decide no part of the increased capital shall be called up except in the event of winding up of the company. कंपनी ने क्या किया, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी, ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर दी. कंपनी को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, तो कंपनी ने क्या सोचा कि कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी. वो भी कॉल नहीं करेंगे, जब भी वाइंडिंग अप टाइम के ऊपर हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उसको कॉल करेंगे. इट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, यानी कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ही हम उस कैपिटल को शेयर होल्डर के पास से कॉल करेंगे. इट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल. एंड दूसरा केस है, प्रोवाइड दैट द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल नॉट कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल में से जितने शेयर इश्यू किए थे, राइट, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल, बट उसमें से जो भी अनइश्यूड हो गए, जो हमें अभी इशू नहीं करने हैं, वो हम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही इशू करेंगे. इट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. इन दी अबव केसेस increased capital under part A and a certain portion of uncalled capital not to be called up under the part B is called reserve capital. यहाँ पे दो चीज़ आई कि हमने ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ चीज़ें कुछ कैपिटल ऐसे है जो ऑथोराइज कैपिटल में से हमने इश्यू ही नहीं की है, तो वो हम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल करेंगे या तो इशू करेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. अगर ऐसा भी हो कि सारी की सारी ऑथोराइज कैपिटल हमारे मार्केट में इश्यू हो गई या तो होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा देंगे. एंड बाय इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल, whatever the additional fund that we are supposed to call in future, it is called reserve capital. So these are the types of different types of share capital from authorized to called up. Thank you.